ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕੇਵਲ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤੇ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਮਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਫਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ। ਗਾਮਾ ਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ।
ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਬੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਜ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੋ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਆ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੀਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ। ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਹ। ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ। ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ,
नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। एक दूजी भाव लख होए लख बीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश। ए तो राहे पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस। सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर। जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल। तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसाण। कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का यो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। केते बरमे काटत कड़िया है, रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात मरिंद। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद। सरम खंड की बाणी रूप, तिथै घाटत घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंदो सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਧਾਲ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा अवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाण पालक होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया सतगुर मेरा सदा दयाला। मोहे दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला। मोहे दीन को राख लिया। काटे
सतगुर मेरा। गुण निधान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सुहेला, नानक सुहेला, शरण पया नानक सुहेला, नानक सुहेला। गुण निधान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सुहेला, नानक सुहेला। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया। सच्चार सिख बैठे सतगुर पास, 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 बैठे सतगुर पास,
सतगुर पास। सचयार सिख बैठे सतगुर पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया समझती है कि बहुत ज्यादा संगत जुड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरणों में आके जो बैठते हैं बहुत संगत जुड़ती है। आप कैलकुलेशन कीजिए, अगर उल्लासनगर की पॉपुलेशन 10 लाख है, कम से कम है, कितने परसेंट लोग आते हैं? 1%, 2%। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है पर है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपके अपने सेंटर जहाँ पे आप रहते हो कितने लोग रहते हैं और कितने लोग हैं जो गुरु के चरणों में आके बैठते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात श्री गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं इस शब्द में कि गुरु के चरणों में आकर बैठना कोई आम बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरणों में आके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में बैठना बहुत बड़े भाग्य चाहिए, बहुत बड़े भाग्य चाहिए। और इसके भी ऊपर की बात है, अगर भाग्य नहीं है किसी के, बुरे भाग्य है, कहते थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर में आके बैठना शुरू कर दे उसके भाग्य बदल जाएंगे। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सचयार सिख बैठे सतगुर पास। यहाँ पर वही बैठ सकता है जो सचयार होने की तरफ चल पड़ा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सचयार, जिसे सच अच्छा लगने लगे, जिसे गुरु नानक बुलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सचयार सिख बैठे सतगुर पास। कुड़ियार कुड़ियार ये जाए रहे। झूठे लोग जिनको झूठ पसंद है वो झूठ के पास ही बैठ सकते हैं। गुरु के पास बैठते उन्हें आलस आने लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नहीं बैठ पाते। अपने को पहले की अवस्था देख लो और अब की देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी हम में से कई हैं हाथ में गुटखा सा पकड़े पाठ करने के लिए उबासी आनी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के पास बैठना आसान काम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सचयार सिख बैठे सतगुरु पास। कुड़ियार कुड़ियार जाय रले। और आगे कहा है जिनके चित्त कठोर है से वह है न सतगुरु पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कठोर चित्त किने कहा है? कठोर चित्त उन्हें कहा है जिनके मन में दया नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके हृदय में दया नहीं है वो गुरु के पास आके बैठ ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके चित्त कठोर है से वह है न सतगुरु पास। उत्थे सच वर्तदा कुड़ियारा चित उदास। अगर किसी को जबरदस्ती ले भी आओ ना कि गुरु ग्रंथ साहिब चलो संगत में चलते हैं, वो उदास होके बैठे रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अमरदास जी कह रहे हैं। वो वेट करते रहेंगे कब भोग पड़े, कहाँ फंस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को परखना है। मैं रोज कहता हूँ आईना है वाणी। हम ये सिम्टम्स बताए हैं बीमारी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे चित्त कठोर है। अगर हम मन नहीं लगता चित्त कठोर है,
मन नहीं लगता, सच अच्छा नहीं लगता, मतलब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झूठ सुनने की आदत पड़ गई ना, खुशामद की आदत पड़ गई कि मैं जो करूं ठीक है, अब गुरु बता रहे तो यहाँ गलत है, अच्छा कैसे लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओए वाले छल कर चत कट दे, फिर जाए वह कुड़ियारा पास। अगर गलती से यहाँ पे आ गए, कोई ले आया तो वल छल करके समय निकालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी प्रकार से समय निकालते कुछ ना कुछ करके, और फिर बात जाके बैठती कहाँ पे है, बुरी संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। विच सच्चे कूड़ न गड्ढे, मन वेखो को निर्जास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं अपने आप को देख लो, परख लो। गुरु अमरदास जी कहते हैं सच और झूठ कभी एक साथ नहीं रह सकता, या सच होगा या झूठ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बड़े भाग्य समझा करो, शुक्राना किया करो गुरु नानक का कि इस वक्त अमृत वेले सबसे मूल्यवान टाइम में अपने संगत को, हमको अपने चरणों में बिठाया गुरु नानक ने। बहुत बार शुक्राना किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें चुना गया है, गुरु नानक पातशाह के वचन है, सोने को तिजोरी में रखना हो तो परखा जाता है पहले शुद्ध है कि नहीं, और जिस आत्मा को परमात्मा से मिलाना हो उस आत्मा को अमृत वेला दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर हमें दिया है अमृत वेले, बिठाया अपने चरणों में, तो अपने से मिलाना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक। सतगुरु फरमाया कारी एह करे, गुरुद्वारे होए के साहिब संभाले। सतगुरु फरमाया कारी एह करे, गुरुद्वारे होए के साहिब संभाले। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे सतगुरु का हुक्म है। क्या हुक्म है? ये काम कर ले। क्या? गुरु द्वारा होए क्या साहिब संभाल लो। गुरु का द्वार, यहाँ पे जब गुरु के द्वार की बात आती है ना, दो बातें आती है। एक गुरु का द्वार जो गुरुद्वारा है, इसकी बात भी की है, और एक अंतरीय भाव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। जो सुरती से गुरु के चरणों में बैठे हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत गुरुद्वारे से ही होगी, और फिर गुरुद्वारा छूट जाएगा, गुरु हाथ में आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, दास ने पहले भी समझाने की कोशिश की थी। जो गुरु साहब जी समझाते हैं, पहला शुरुआत आदमी के गुरुद्वारे से ही होती है, और ये करनी जरूरी है। शब्द यही ताकीद कर रहा है कि गुरुद्वारे पहुंच जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? गुरुद्वारे होए क्या साहिब संभाले हो। क्या कर? गुरुद्वारे जा, माथा टेक, गुरु की हजूरी में बैठ जाओ और साहिब को संभाल। यहाँ पे मतलब समझना, हमें कोई चीज संभालने के लिए दी जाए कि संभाल लो, बड़ी कीमती चीज है, तो हम उसे संभाल के रखते हैं। ठीक है, तो चाबी ही है गाड़ी की, संभालने को दे दी। अब जब समय आया, चाबी की जरूरत पड़ी गाड़ी की, तो चाबी मिल नहीं रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ रखा थी याद नहीं, इसका मतलब क्या है? संभाली नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे संभालने का मतलब है याद, याद। साहिब संभाले हो कि गुरु को अपनी याद में बसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की हजूरी में बैठ के, पर पॉइंट को समझना, बिना गुरु की हजूरी में बैठे गुरु हृदय में आएगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग, दास पहले भी कहता है कि टोकते हैं लोग, खाली तो गुरुद्वारे में माथा टेकने जाता है, करता कुछ नहीं। शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है। कोई माथा टेकने जाता है, माथा टेकने जाता है, माथा टेकने रोज जाता है, एक दिन पुण्य बन जाते हैं, फिर बैठ जाता है थोड़ी देर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर बैठने लगता है, बैठते बैठते फिर सुनने लगता है, सुनते सुनते समझ आने लगती है। शुरुआत ABCD से ही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच्चे आठ सिख बैठे सतगुरु पास। सतगुरु कौन? धन धन श्री गुरु
ग्रंथ साहिब जी। सच्चियार सिख बैठे सतगुर पास, सच्चियार सिख बैठे सतगुर पास, सच्चियार सिख बैठे सतगुर पास, 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 बैठे सतगुर पास। पांडा अच्छा सोए जो तिस भाव से, पंडात मलीन तोता अच्छा ना होसी, गुरु दुआरे होए सोझी पासी, एत दुआरे तोए अच्छा होसी। से बोलिए धन गुरु नानक पातशाह गुरु के हजूर में बैठने की पुस्तक कर रहे कि क्या होता क्या है जब गुरु की हजूरी मिलती है, कोई गुरु की हजूरी में बैठता है। देखिए नाम जपना होता है कि अपना बैठ के कहीं पे भी नाम जपा, एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठकर नाम जपना जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। महापुरुष कहा करते थे गुरुद्वारे में जाओ कम से कम 1 घड़ी 24 मिनट 15 मिनट ही सही गुरु की हजूरी में बैठा करो, चाहे चौर सब करो चाहे बैठो, गुरु के सामने बैठ जाओ सन्मुख होके। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे क्या होगा, कहते चमत्कार होगा, जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा वो भी वो लिख देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम किसी इंसान के पास जाए मदद मांगने, पहले तो शर्म आती है और मन में डर होता है मदद करेगा कि नहीं। कई बार आदमी सुना ही देता है कि हर जी बोलिए धन गुरु नानक, बेइज्जत कर देता है। ऐसा कोई देखा है मदद चाहिए हो हमें और वो लेने आए मदद करने? नहीं। पर मेरे गुरु हर से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु कोट पैंडा चरण शरण गुरु एक पैंडा। तू गुरुद्वारे की तरफ गुरु की तरफ मुख करके भावना से श्रद्धा से चाव से कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, एक कदम बढ़ाएगा ना गुरु खुद लेने आता है, आपको पता चल जाएगा कैसे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और ये लेने आता है, फिर अपने चरणों में बिठाता है, फिर देखता है कि क्या तकलीफ है हमें, वो दूर कर देता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा यही समझा रहे, पांडा अच्छा सोए जो तिस पाव से, बर्तन वही अच्छा जो उसे भा जाए, यानी कि शरीर आत्मा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। पांडा अत मलिन धोता अच्छा ना हो सी। हमारा जो मन का बर्तन है इतना बुरा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, धोने से साफ नहीं हो रहा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म जन्म के इस मन को मल लागी काला हुआ स्याह हो। इतना हो चुका है मैला, जैसे ग्रीस का कपड़ा हो, साफ करने से साबुन से साफ नहीं होता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जन्मों जन्मों की मैल लगी है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्वाह। खजली तोती उजली ना हुई जैसो तोबड़ पाओ, 100 बार धो लो तो भी साफ नहीं होती। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन इतना मैला हो चुका है, इतना मैला हो चुका है कि गुरु की हजूरी में बैठ के भी बुरे ख्याल आते हैं मन में। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना मैला मन है, पर कहते तू अगर रोज गुरु साहब जी की हजूरी में बैठ के नाम जपेगा
सिर्फ बैठ ही जा, कुछ मत कर। हर से पहले धन गुरु नानक। गुरुद्वारा होए सोझी पाए सी, तुझे ज्ञान मिल जाएगा। गुरु सोझी डालेगा तेरे हृदय में, फिर क्या होगा? एक द्वारे तोए अच्छा हो सी, गुरु तेरे मन की मैल निकाल के रख देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज बढ़ियाई बताई गुरु साहब जी ने, जो गुरु के पास बैठते, पास बैठना कितनी बड़ी बात है, मन कैसे साफ होता है। एक बड़ी प्यारी घटना है, सच्ची घटना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तो पंक्तियां पढ़ने फिर उसे लेते हैं। बैठे सतगुर पास, 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 बैठे सतगुर पास। कुड़िया कुड़ियारी जाए रे, 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 कुड़िया कुड़ियारी जाए रे। यार सिख बैठे सतगुर पास, सच्चार सिख बैठे सतगुर पास, यार सिख बैठे सतगुर पास। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। एक ट्रक ड्राइवर की घटना है। शहर में काम करता है, ट्रक लोड करता है, अनलोड करता है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता उसे। तो ट्रक की लोडिंग होती है या अनलोडिंग होती है तो समय होता है उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतनी देर बैठ के या तो जुआ खेल लेता है या शराब पी लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ जाता है, जो अक्सर कॉमन सी बात है हमारे लिए। चलो बैठ के शराब पी ली, चलो बैठ के जुआ खेल लिया, रोज का नित्य कृत्य है उसका। पर एक अच्छाई है उसमें, रोज जब निकलता है काम के लिए पहले गुरुद्वारे जाता है, माथा टेकता है और एक घड़ी बैठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने उसे कहा था कि ये करके जाया कर काम पे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने वो बात मान ली। 24 मिनट एक घड़ी देखकर बड़ी मुश्किल से गुजारता कि एक घड़ी मुझे कहा है महापुरुषों ने, मुझे एक घड़ी बैठना है। एक घड़ी वो गुरु साहब जी की हजूरी में बैठता है, बड़ी मुश्किल से काटता है समय और फिर चला जाता है अपने काम पे और फिर जुआ खेलता है, शराब पीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जुआ शराब मांस सब कुछ, क्योंकि मेल है ना, मांस शराब है ना, शराब के साथ मेल है अपने आप। कहते हैं ना शराब और कबाब, ये कहते हैं ना, कभी सुना है शराब और दूध? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। शराब और लस्सी नहीं, शराब और कबाब। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ऑटोमेटिकली एक चीज होती है दूसरी आ जाती है। अब रोज का ये नियम है, किसी तरह से 24 मिनट एक घड़ी बैठ के महापुरुषों का वचन है उसी के बैठ के जाकर, तो वो मानता है इतनी बात। गुरु साहब जी हजूरी में बैठता है, बड़ी मुश्किल से बैठता है और समय खत्म होता है, चला जाता है। और घर में रोज कलेश, क्योंकि जब पी के आता है घर वाली से भी झगड़े, कमाई हिसाब की है, सारे खर्च कराता है खेलने में या पीने में, घर में रोज कलेश, रोज कलेश। जीवन उसका इसी तरह से बीत रहा है, परेशान भी रहता है, पर ये बुरी आदतें छूटती नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं ना, अगर हम छोड़ना चाहे ना तो छूट सकती है। कोई छोड़ना चाहे से, हम छोड़ना नहीं चाहते, ऊपर से अरदास करते कि छुड़ा दे, अंदर से नहीं चाहते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अंदर से सच में चाहे ना
ये छुड़ा देता है। मैंने कितनों को छुड़ाते देखा है। कोई अरदास कर दे बस एक बार मन से कि अच्छा मुझसे नहीं छूटते। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। एक महापुरुष एक आदमी को कहते थे ना शराब छोड़ दे शराब छोड़ दे, वो कहते मुझसे छूटती नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शराब छोड़ती नहीं मुझे, मैं छोड़ना चाहता हूँ, शराब मुझे नहीं छोड़ती। एक दिन शाम को आया महापुरुष के पास, तो महापुरुष एक खंबे को पकड़ के बैठे। वो कहते क्या कर रहे हो? कहने खंबा छोड़ नहीं रहा। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। कहते खंबे में कौन सी जान है, आप नहीं पकड़ के रखा है, छोड़ दो छूट जाएगा। कहले बस तेरी बात का जवाब है, शराब ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तूने शराब को पकड़ रखा है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोज कलेश होता है, आज इतना ज्यादा कलेश हो गया, इतना ज्यादा कलेश हो गया। घरवाली ने कह दिया कि रोज तुम तैयार होके अच्छे से जाती हो, पर पता नहीं क्या हो जाता है, तुम गुरुद्वारे में जाते हो, उसके बाद सारे पैसे जुए में हार आते हो, शराब पी के घर में आते हो, बच्चे रुल रहे हैं, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आगे से तुमने ऐसा किया मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी बच्चों को लेकर। ये बात इसे बहुत चोट कर गई। तो अगले दिन ये गुरुद्वारे में गया। पहली बार इसने गुरु साहब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में अरदास की, मन से अरदास की, बादशाह मेरा घर रुल जाएगा पर मुझसे आते छूटती नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए बाबा अनंत सिंह जी कहते थे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते हैं, बुलवाने वाला चाहिए, वो बोलते हैं सुनने वाला चाहिए। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते उस वक्त अखंड पाठ चालू था। ये आदमी खुद बताता है अपनी वीडियो में कि अखंड पाठ सब चालू था उस वक्त। तो मैंने अरदास कर दी, पातशाह मेरे से ऐब नहीं छूटते, मेरा घर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, कृपा कर मुझसे शराब मांस सब छुड़ा दे, जुआ मेरे बस में नहीं है। कहते पहली बार मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे रोके अरदास की। मैं रोज बैठ के आ जाता था, कभी अरदास नहीं की, कभी सोचा भी कुछ नहीं, कभी नाम भी नहीं जपा, बस महापुरुष का हुक्म था, मैं 24 मिनट बैठता था श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में। कहते आज जब मन से अरदास की तो पाटी सिंह पाठ कर रहा था, उसने पाठ करते करते पंक्तियां ये आ गई, बोलिए धन गुरु नानक। कहता मुझे बाणी की समझ नहीं है, समझने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आती, पर उस दिन गुरु ने कृपा की, ये पंक्तियां मेरी समझ में भी आ गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और पंक्तियां कौन सी थी? जो उस दिन हमने शब्द लिया कबीर जी का, कबीर पाग मछली सुरापान जो प्राणी खाए, तीरथ भरत देव की ते सब है सातल जाहे। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते मुझे समझ नहीं बाणी की, पर उस दिन ये पंक्तियां जब आई एक एक अक्षर मेरी समझ में भी आ गया, गुरु ने कृपा की। और कहते मैं जैसे ही वहां से निकला, जाना तो वही था जहाँ पत्ते खेलने, जहाँ शराब पीने, मैं कदम अपने उस तरफ चल पड़े, पर कहते फोन आ गया मालिक का कि ट्रक खराब हो गया है। आज फोन आ गया ट्रक खराब हो गया, ट्रक ठीक कराना है, गैरेज में आ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ट्रक को गैरेज में लेके गए, मैं कहने लगा सुबह से लेकर शाम मेरी वहां गुजर गई, सुबह से शाम हो गई, मैं ट्रक को ठीक ही कराता रह गया और ट्रक पूरा ठीक नहीं हुआ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे गुरु वर्तता है। कहते जब उस दिन मैं घर गया ना, मैंने शराब पी ना जुआ खेला, घर में गया तो घर वाले भी खुश, बच्चे भी मुझे गले से लगा रहे। मैंने पहली बार ये माहौल देखा अपने घर का, क्योंकि घर कभी ऐसे गया ही नहीं। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। और इतना मन को शांति, उनके भी और मेरे भी, कोई कलेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, घर वाली सेवा कर रही है, बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे इतना आनंद आया जो कभी शराब पीने में भी नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता अगले दिन फिर मैं गुरुद्वारे जाके बैठा 24 मिनट के बाद, और जब निकला वापस पूरा दिन मेरा ट्रक ठीक नहीं हुआ था, बनाने में निकल गया। 2 दिन हो गए ऐसे। शाम को फिर बड़ा आनंद घरवाली के साथ, बच्चों के साथ। कहने लगे मुझे अब समझ में आया कि वो ट्रक ठीक नहीं हो रहा था, गुरु नानक मुझे ठीक कर रहा था। यहाँ से मैंने अरदास की कि मेरी छुड़ा दो, गुरु नानक ने कृपा की, वो पंक्तियां आई। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी ने वो पंक्तियां सुनाई, मेरे हृदय में अर्थ डाले, ट्रक खराब किया, 2 दिन तक मुझे खेलने खाने पीने जाने नहीं दिया,
और अब उसके बाद मेरा मन ही ना करे। वो दिन है, कहता है आज के इतने साल हो गए, मेरा जीवन बदल गया केवल गुरु साहब जी की हजूरी में 24 मिनट बैठने से। जीवन बदल गया, स्वर्ग बन गया मेरा जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं कहता हूँ, सच कहता हूँ साथ संगत जी, विश्वास करके देखो, जीवन में बहुत समय ऐसे आते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, हम दुखी होते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मैंने पहले भी कहा है, ऐसा कोई मुश्किल समय आ जाए, कुछ मत करो, सबसे पहले हाथ पैर मुंह धो। स्नान नहीं किया तो स्नान कर लो, स्नान किया हो तो हाथ पैर मुंह धो के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में आके बैठ जाओ बस। ऐसे नहीं पंक्तियां, देख तुम्हारा दर्शन मेरा मन तेरे, मेरे सदगुरु पूरे, मैं गरीब सच, मुझे तेरा ही आसरा है। और जब तेरा दर्शन करता हूँ मेरे मन को धीरज मिल जाता है। सच में करके देखो, सिर्फ बैठ जाओ। ये गुरु ऐसा है, भीतर की जानता है, दुख दूर करके भेजेगा, ये कर देता है। यहाँ से बोली धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे बहुत लोग तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं और गुरुद्वारे में जैसे समझो हजूर साहब गए, गाड़ी कर ली, एक गुरुद्वारे में माथा, दूसरे गुरुद्वारे में माथा, तीसरे गुरुद्वारे में माथा टेका, माथा टिक टिक के शाम को वापस आ गए। कहने लगे ऐसे नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट बहुत अच्छे से सारी संगत समझ लो, अगर पूरा फल झोली में डालना है तो समय निकालते हो ना। गुरुद्वारे को दर्शन के लिए हरमंदिर सब गए, वहां श्री अमृतसर साहब के गुरुद्वारे को दर्शन के लिए कहते थे भले 10 के बदले 2 गुरुद्वारे के दर्शन करो, पर झोली भर के जाओगे अगर मर्यादा से जाओगे। मर्यादा क्या है? जिस गुरुद्वारे में गए उसका इतिहास समझो क्या था, फिर उस इतिहास को समझ के वो वर जो गुरु साहब जी ने वहां दिया था वो मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो भाई गोपाला जी का गुरुद्वारा है, जहाँ पे उन्होंने शुद्ध बाणी सुनाई गुरु हरगोविंद साहब जी को, श्री जपजी साहब जी की सुनाई ना, और वो गुरु हरगोविंद साहब जी इतने परेशान हो गए उस पे कि वो अपनी गद्दी उसे देने लगे। गुरु नानक के घर की गद्दी शुद्ध बाणी पे इतने प्रसन्न हो गए, शुद्ध बाणी पढ़ना इतना महत्व रखता है। कहते थे वहां गए हो, एक भावना से शुद्ध श्री जपजी साहब जी का पाठ करके गुरु साहब जी की हजूरी में बैठ के फिर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु हरगोविंद साहब जी जो एक पाठ पे प्रसन्न होकर उसके गुरु गद्दी देने लगे, तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी करेगा। जिस गुरुद्वारे में जाओ, संतोख सर साहब जाओ, मानो गुरुद्वारा संतोख स्वामी, संतोख की प्राप्ति होती है वहां पर। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वर है, कोई सरोवर में स्नान करके श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करे, वहां बैठ के संतोख की प्राप्ति होती है। जाओ तो ये करके आओ। और जाना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना साथ साथ, क्योंकि ऐसा बहुत होता है। पहले मैं घटना सुना दूं। भगत तुलसीदास जी वो गए तीर्थ यात्रा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हरिद्वार गए तीर्थ यात्रा पे, और वहां जाकर और अपने शिष्यों से कह के गए अपने आश्रम में कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं आनंद लेने। और वहां पे जाकर उन्होंने देखा मूर्तियां बिक रही है बहुत सस्ती, मूर्तियां बिक रही है बहुत सस्ती। तो क्या किया, मूर्तियां खरीदनी शुरू कर दी कि वहां जाके महंगे में बेचूंगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्या किया उन्होंने, मूर्तियां सस्ती दिखी, मूर्तियां ले लेता हूं, और मूर्तियां खरीदते रहे। वहां पे भगवान उसे शिक्षा देने के लिए एक साधु का भेष बना के उसके आश्रम में गए और पूछा भाई भगत तुलसीदास जी का है? तो शिष्य कहने लगी वो तो तीर्थ यात्रा पे गए। तो साधु कहने लगा नहीं, वो तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, वो तो बिजनेस करने गया है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो धंधा करने गए, व्यापार करने गया है, वो मूर्तियां खरीदने गया है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कह के साधु तो चले गए। जब भगत तुलसीदास जी वापिस आए और पूछा कोई आया था कोई खास, तो कह लगे साधु आया था। हमें नहीं पता, उसे कैसे पता है, आप तो वहां थे। वो आके कहता है कि भगत तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पे नहीं गए हैं, वो व्यापार करने गए, मूर्तियां खरीदने गए। यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ रहे हो जो दास कहना चाहता है? बहुत सारी संगत बाहर से आई है, बहुत सारी। यहाँ पे आयो घर के बोल के कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, केवल 2.5 घंटे का सत्संग नहीं होता। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आयो, भक्ति करने आयो। यहाँ पर आते हो, कमरा लेते हो, रहते हो, संगत आपकी सेवा करती है, आपको भोजन हर जगह पे पहुंचाती है जहाँ पर बैठे हो। सैकड़ों सेवादार लगे पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए। एक एक
पल कीमती है। यहाँ पे आए हो तो क्या करना चाहिए? पूरा दिन नाम जपना चाहिए। गुरुद्वारे में जाके पाठ चल रहे उनमें हाजिरी भरो, लंगर में सेवा करो। आप करते क्या हो? 50% लोग क्या करते हैं? गाड़ियां करके घूमने चले जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई शॉपिंग करने गया है, कोई घूमने गया है। क्या कहा भगवान ने? तुलसीदास क्या करने गया है? हमारे किसमें लिखी जाएगी? शॉपिंग करने आया था या घूमने आया था? ये सत्संग में नहीं आया था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पूरा लाभ उठाना है, गुरु से झोलियां भरनी है, तो ये काम मत किया करो। यहाँ पे आके जब 10 यात्रा लेके निकला था ना, तो सारे सेवादारों को, सबको ताकीद थी, कोई कहीं घूमने नहीं जाएगा, केवल नाम सिमरन जाप, तब ये यात्रा दर्शन यात्रा कहलाएगी। सच में गुरु के चरणों में ये सफल होगी एक एक कदम। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गलती मत किया करो। घूमने के लिए सारा जीवन पड़ा है, 2-4 दिन के लिए आए हो तो पूरा लाभ उठाओ। केवल नाम, बंदगी, सिमरन, कीर्तन। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बैठो गुरु साहब जी की हजूरी में, संगत मिलके आई है। जब पुराने जमाने में संगत मिलके आती थी ना, तो सब मिलकर कीर्तन किया करते थे पूरा दिन। आप लोग बैठ जाओ साथ में, कीर्तन करो। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाभ उठाओ, झोली भर कर जाओ। कभी भी कोई जीवन में तकलीफ आए, कुछ भी तकलीफ आए, गुरु की हजूरी में आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत यहाँ से होगी, फिर एक दिन हजूरी यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। जब गुरु अंदर प्रकट हो गया, फिर द्वारा छूट जाएगा, फिर गुरु मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच्चे यार सिख बैठे सतगुर पास, बैठेंगे तो आशीष मिलेगी ना गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठना पड़ेगा गुरु के चरणों में। बैठा करो, बैठा करो, गुरु की नजरों में आ जाएंगे। और जो गुरु की नजरों में आ जाता है ना, बात बन जाती है उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्यारी घटना है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की। 2 पंक्तियां ये पढ़ लें, फिर वो घटना लेते हैं। हम धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। गुरु के हजूरी में आके बैठ जा, ते सारे कार्य जो रास कर देगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। आगे क्या करेगा? एक एक वर दिया है, तो गुरु की हजूरी में आके बैठ तो सही। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे।
दुष्ट दूत परमेश्वर मार, जन की पैज रखी कर पर। बादशाह सब वस कर देने, अमृत नाम महारस पीने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं सबको एक शब्द में गिना दिया है कि गुरु तेरा ये कर देगा, तेरा ये कर देगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु तुमरे थिर कर बैसो हर जन प्यारे। क्या हरि के जन बैठे हो वहां बैठ जा, जहाँ हरि हो वहां बैठ जा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। टिक कर बैठ जा। सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, तेरे सारे काज सवर जाएंगे। दास ने पहले भी एक पॉइंट बताया था। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि अमृत वेले उठने से पहले जब नहीं उठता था, मुझे उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ब्रिजेस के होते ना, बोलता है ऑफिसर्स को शराब पिलानी, गलत सारे जितने गलत काम है सब कुछ रिश्वत खिलानी, सब करना पड़ता था, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आता था। ये तो देते ही नहीं थे, सिस्टम है। बिहार से भूलिए धन गुरु नानक। कहता जब से अमृत वेले उठना शुरू किया है, जो बाणी कहती है ना कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, कहता सच में मुझसे पूछो, कहता मैंने तो मेरे साथ तो होता है ना। कहता अमृत वेले उठने के बाद एक तो मैं पहले सुबह 9 बजे लग जाता था काम पे, तब भी मेरे काम नहीं होते थे। अब कहता है सोकर उठ के आराम से जाता हूँ, मुझे फोन आते ऑफिसर्स के, कॉन्ट्रैक्ट आपको ही देना है, ना मैं रिश्वत खिलाता हूँ, ना मैं कोई गलत काम करता हूँ, और पहले से कई गुना ज्यादा काम है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे क्या होता है? अमृत वेले उठ के क्या किया? गुरु के पास ही बैठ गया ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, तेरी तरफ कोई बुरी नजर करके नहीं दिख सके। डरने का डर खत्म हो जाएगा कि दुश्मन क्या करेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह शाह सब बस कर दीने। जितने मंत्री है सब बस में आ जाएंगे, सारे काम करने लगेंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। खुद बुला के दे रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, क्या है मंत्री होते हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, बादशाह है ना आज के। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह शाह सब बस कर देने, अमृत नाम मैं नाम का रस पी रहा हूँ, काम मेरे अपने आप हो रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। निर्भय होए भजो भगवान, निर्भय होके जपो, किसी का भय रखे बिना नाम जपो, चढ़ती कला में। साथ संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभु, इस अंतर्यामी के शरण में आके बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नाम आया शामू सचियार। आपको मैंने पहले ये पूरी इनकी ना हिस्ट्री बताई है, कैसे ये संत की अवस्था में पहुंचे, कैसे सचियार बने, कि सचियार हो या कि कूड़ा टुट्टे पाल, हुक्म जाए चलना नानक। इसने अर्थ पूछे थे गुरु साहब जी से कि सचियार कैसे बनते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु साहब जी ने जो इसे समझाया था वो उसके ऊपर चला, और ये उसका नाम पड़ गया शामू सचियार, क्योंकि सचियार बन गए, संत बन गए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी के हुक्म से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से ये अनंतपुर साहब से काफी दूर रहकर प्रचार कर रहे थे, संगत को नाम से जोड़ रहे थे अमृत वेले। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। दो पंक्तियां गा देंगे। बैठे सतगुर पास, 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 बैठे सतगुर पास। उड़िया उड़िया ही जाए
सतगुर पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से संतों को अमृत वेले से जोड़ रहे हैं, नाम बाणी से जोड़ते हैं, तो संगत जुड़ती है, उसमें एक परिवार रोज आके सेवा करता है, रोज जुड़ता है। उनका एक छोटा बालक है जो बीमार रहता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक वचन जो है ना, ये घटना का साथी का हमारे लिए बहुत कीमती है। हर घर में कोई ना कोई तकलीफ है, रास्ता मिलेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। परमानेंट सॉल्यूशन है गुरु के चरणों में बैठना, परमानेंट सॉल्यूशन। उनके पास एक परिवार आता है जो रोज सेवा करता है, कीर्तन सुनता है, कथा सुनता है, जो सामू सचार्य जी सेवा देती है वो करते भी हैं। उनका एक छोटा बालक है जो बीमार रहता है, बहुत ज्यादा ही बीमार रहता है। तो उन्होंने अरदास की, उनसे बेनती की, आप महापुरुषों आप अरदास कर दो हमारे बच्चे के लिए। इलाज तो चालू, वैदिक इलाज कर रहे हैं पर कोई दवाई असर नहीं करती, बहुत बीमार रहता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष परोपकारी अरदास कर देते बच्चे के, वो बालक ठीक हो जाता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर थोड़ा समय बीतता फिर बीमार पड़ जाता। इतिहास में लिखा है कि 4 बार ऐसे हुआ। वो बीमार पड़ा बहुत, सामू सचार्य जी ने अरदास की, वो ठीक हो गया, चलने फिरने लायक हो जाए। थोड़े समय बाद फिर से बीमार हो जाए, बिस्तर पे पड़ जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो चौथी बार आए ना, सारा परिवार की आप अरदास कर दो, कहने लगे सामू सचार्य जी अंतर्यामी, क्योंकि अवस्था पा चुके थे। उन्होंने ध्यान से देखा, मस्तक पड़ा बच्चे का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे अब इसे सबसे बड़े डॉक्टर की जरूरत है, मुझसे नहीं ठीक होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे क्या बात है? कहने लगे माता पिताओं पर दिल को मजबूत करके बात सुनना। आपके बच्चे की आयु बहुत थोड़ी बची है, ऊपर से फरमान आ चुका है, कुछ दिनों का, कुछ समय का मेहमान है, 9 साल की आयु है इसकी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये नहीं बचेगा। माता पिता तो रो पड़े जब पता चले बच्चा बीमार है, और फिर से हालत खराब, अब तो बचेगा ही नहीं बालक। वो रो के पड़े, बहुत रोए, बहुत रोए। तो महापुरुष को तरस आ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, वो ठीक करना है, बचाना है। तो कहने कौन? कहने लगे मेरे धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में। बिहार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जो जी मेरे गोविंद, जो जी मेरे प्यारे, हर प्रभु मेरा जो जी जियो, हर प्रभु मेरा जो जी जियो, हर प्रभु मेरा जो जी जियो जियो, जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे, मेरे गोविंद, मेरे प्यारे, जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे। और शामू सचार्य जी ने उन्हें एक जुगती बताई। देखिए जुगती के बिना ना मुक्ति नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बेनती सुनेंगे, वो मुस्कुरा पड़े।
कहते हैं एक होता है बेनती करना, उनकी मर्जी है माने ना माने, एक होता है वे खुद बुला के तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछेंगे। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। जुगती अपना लो, जुगती बताई भाई शामू सचियार जी ने उस परिवार को जुगती बताई। कहने की क्या जुगती है? कहने की काम करना, चाहे बच्चा कितना भी बीमार है उसको बोलना 9 साल की आयु होने वाली है, छोटा बच्चा देखो, कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहाँ बैठते हैं संगत में सेवा करना, पंखा जलना संगत को गर्मी में, संगत में जो भी सेवा गुरु साहब जी के हजूरी में दिखाई दे वो सेवा करता संगत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आप दोनों वहां जाकर कोई भी ऐसी सेवा पकड़ लेना जो गुरु गोविंद सिंह महाराज को पसंद हो। और मैं आपको बताऊं तो नीले की सेवा पकड़ लेना, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का घोड़ा ना नीला, उसके तबेले की सेवा ले लेना और ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खुद पूछे भी ये सेवा करता कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते अगर तुमने ये सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर लिया तो वो खुद तुमसे पूछेंगे कि क्या काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखो महापुरुषों ने जुगती बता दी, हमारे लिए बड़ी कीमती है। ध्यान देना, गुरु की नजरों में आना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु की नजर में हर कोई है, पर किसी पे विशेष दृष्टि जाना क्यों जाती है? किसी पे विशेष, कोई बहुत ज्यादा सेवा करे अपने आप ध्यान चला जाता है, कोई बहुत ज्यादा बिना कहे कहना माने अपने आप मन से आशीष निकल जाती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये चले गए वहां पे जाके इतिहास में नाम आया भाई धन्ना सिंह। ये धन्ना सिंह वहां पे जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नीला था ना घोड़ा, उसकी सेवा करता था, उस तबेले की जहाँ पे वो रहते थे नीला जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहां पर उन्होंने जाके भाई धन्ना सिंह जी से बेनती की कि हमें सेवा दे दो। तो कहने का आप कर लोगे? कहने के दे दो, बड़ी मजबूरी है। सारी व्यथा सुनाई तो धन्ना सिंह कहने का ठीक है आप सेवा कर लो, और एक एक चीज बताई कैसे करनी है, कैसे नीले की मालिश करनी है, कैसे सफाई रखनी है, कैसे क्या खिलाना है, सब कुछ। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है इन्होंने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। जब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नीले पे सवार होने के लिए आए, नीला तबेले से बाहर है, गुरु गोविंद सिंह महाराज तबेले की तरफ देखे, बहुत ही ज्यादा साफ, और नीला भी बड़ा प्रसन्न। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। समय चलता गया, कुछ दिन बीते तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा, वीर सफाई कौन करता है इतने अच्छे से? तो पहले कभी देखा नहीं धन्ना सिंह तुझे करते हुए सेवा। कहता पातशाह एक परिवार आया वो सेवा करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी जानते सब है, पर मुस्कुरा के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तख्त पे बैठे हैं, संगत आ रही है, मिल रही है, अपना दसवंध रख रही है, असीसे लेकर जा रही है, और एक बालक है जो संगत आ रही है उन्हें जल छका रहा है, और गर्मी है तो पंखा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार दिख रहा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कि एक बच्चा है सेवा कर रहा है, नजर पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि रास्ता बताता संतों महापुरुषों ने, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कुछ बताने की जरूरत थोड़ा थी क्या है। उन्होंने उस बालक को अपने पास मिलाया, बेटा इधर आ, और एक शस्त्रों में कालक, लोहे के शस्त्र होते हैं ना, उसमें कालक लग जाती है, काली काली उंगली लगाओ तो कालक निकलती है, वो लेकर एक और उसके माथे पे वो काला टीका लगाते ना हम लोग, नजर ना लगे, वो लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पास में खड़े सेवादारों के मन में शंका आ गई, भैया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जैसे किसी को नजर न लगे इसलिए लगाते हैं, और सिक्की में तो इन चीजों का कोई काम ही नहीं है, किसी भी भ्रम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसके काला टीका क्यों लगाया? उसके माता पिता को बुलाया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, माता पिता है। सारे सेवादार के मन में शंका है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कह लगे हम आपकी शंका समझते हैं, हमने ये काला टीका नहीं लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके माता पिता को कहने लगे
संत की संगत की है आपने, शामू सचयार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जुगती बता गया आपको, इसकी वजह से इसकी झोली भर गई है। कहने लगे हमने, इसकी 9 साल की आयु थी, इसने मर जाना है थोड़े दिनों में, हमने एक 0 साथ में लगा दिया, अब ये 90 वर्षों तक जिएगा। कैसे, यहां तक बात कैसे पहुंची, शुरुआत कैसे हुई? ये परिवार रोज आके शामू सचयार जी की संगत में बैठता था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत तो वहीं से हुई ना, संतों की निगाह में कैसे आए? रोज आकर बैठते थे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में आके बैठा था, बदला किसने किस्मत? ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी बैठे हैं ना, दसा पातशाही दी जोत। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं, जब इसकी हजूरी में आके बैठोगे जो कुछ भी लिखा हुआ है बदल के रख देंगे। वो रोज का नियम बनाओ, रोज का काम पे जाने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के ही जाना है। चाहे वाहिगुरू वाहिगुरू करो, चाहे मूल मंत्र पढ़ो, चाहे जप साहिब जी का पाठ करो, चाहे चौर साहिब करो, एक नियम बना लो। और अगर गुरुद्वारा पास में नहीं है तो आंखें बंद करके बैठ जाओ। घर में जो जगह बनाई आसन, वो भी नहीं है तो कहीं पे भी ध्यान लगा के बैठ जाओ कि यहाँ बैठे हो गुरु की हजूरी में। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये किए बिना मत जाया करो, उस दिन होने वाले एक्सीडेंट टल जाते हैं अगर यहाँ पे लिखा हो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वाले रोज उठते हैं उनके ऊपर विशेष कृपा बरतती है। संभालो इस बात को। ये गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं, सचयार जी के बैठे सतगुरु पास बैठेगा वही जो सच्चा होगा, जो सच पर चलने की राह पर चल पड़ा होगा, सच्चाई की राह पर। हमें गुरु ने तर्स किया है। दास बार बार एक पॉइंट रिपीट कर रहे हैं पूरे चाली में कि केवल 40 दिन नहीं निभाना, मेरा हर बार ये पॉइंट होता है। क्योंकि जितनी संगत चाली में जुड़ती है, चाली के बाद ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं ना, ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। हाँ, बिल्कुल नहीं दास कह सकता, समझो 5% और जुड़ती है और प्लस हो जाती है गुरुद्वारे। मैं जब भी चालिया खत्म होता है मैं गुरुद्वारे चले जाता हूँ रोज। वैसे तो मैं कभी कभी जाता हूँ, पर चालिया के बाद लगातार रोज जाता हूँ, रोज देखने भाई कितनी बड़ी। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और खुशी होती है जब हॉल भर जाते हैं, नीचे भर जाता है, खुशी होती है कि हाँ संगत कुछ तो जुड़ गई एक्स्ट्रा। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। पर मैं चाहता हूँ हम सबकी किस्मत ऐसी क्यों ना बने, क्यों ना बने। ये इसकी हजूरी में आके रोज बैठो। अगर अमृत वेले नहीं आ पा रहे, घर में अमृत वेला कर लो, पर जब जाने का समय है काम पे तो 10-15 मिनट गुरुद्वारा, कोई आपके घर के पास में गुरुद्वारा, वहां चले जाओ, गुरु साहब जी की हजूरी में बैठ कर जाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस्मत बदल जाएगी। जो चाहिए गुरु अंदर की जान के सब ठीक कर देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं होने वाले काम होने लग जाएंगे, करके देखो। बैठे सतगुर पास, 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 बैठे सतगुर पास। पॉइंट यहाँ पे 10 क्लियर कर दी। वो बच्चा आगे आगे होके सेवा कर रहा था ताकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नजरों में आ जाए, पर आपको नहीं लगता इसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ना परिवार से पूछा ना उससे पूछा, सीधा 9 का 90 कर दिया। अंतर्जामी है ना। कोई सेवा कहीं छिप कर भी कर रहा हो विनम्रता से, गुरु की नजरों में है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की सेवा बहुत जल्दी गुरु की निगाह में ले आती है। कोई सेवा करे, जब भी दास हमेशा कहता आते हो कोई ना कोई सेवा कर लिया करो, चाहे जरूरत हो या ना हो। हर बोलिए धन गुरु नानक। हमें अपने एक हाजिर लगवानी गुरु के चरणों में, सेवा कोई ना कोई पकड़ लिया करो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं छोटा था, मुझे भी समझ नहीं थी। मुझे अभी तक अपनी वो बात याद आती है। बाबा कुंदन सिंह जी जहाँ से गुजरते थे नानक सर, तो जहाँ वहाँ पे ना पाठ रखे होते, जहाँ से गुजरना होता था, उनका टाइम होता था गुजरने का, तो मैं टाइम नोट कर लिया कभी गुजरते हैं तो जहाँ मुझ के पाठ की बारी है, वहाँ पे जो अखंड चलते हैं जपजी साहब जी के पाठ, सुखमन साहब जी के पाठ, में वो टाइम बारी लेनी चाहिए बाबा जी मेरे को देख ले। जी बोलिए धन गुरु नानक। उस समय जाके स्पेशली बैठ जाने के मुझे दे दो पाठ, और मकसद यह था कि
बाबा जी की नजरों में आ जाऊं। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। बहुत देर बाद जाके समझ में आई कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, पर बच्चा था मैं। और एक दिन तो ऐसे हुआ, पाठ पे बैठा था, महापुरुष बिल्कुल मेरे साथ में आके बैठ गए, पाठ सुनने लगे। हर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो अपनी बातें याद आती है। ये भावना भी ठीक है, अच्छी बात है, पर गुरु अंतर्जामी है, वो भीतर की जानता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी किसी को नहीं पता कि डेकोरेशन किसने की है, ये हमें पता है ना, मुझे पता है कि किसी ने मेहनत की है यहाँ पे खड़े होके, किन्होंने की है। अभी उनकी कैसी संगत कितना प्रसन्न होती है देखकर, कितना अच्छा है, मन लगता है। एक एक चीज पे डिपेंड करता है ना। तो जिसने की है, जिससे गुरु ने सेवा ली है, क्या गुरु की नजरों में नहीं है वो? हर से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा छिप के की है तो गुरु की नजरों में ज्यादा है। 1 मिनट लगता है नाम लेने में, नाम ले दूंगा वाह वाही हो जाएगी, पर मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ गुरु बड़ी जोली भर के दे उसे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी कई सेवाएं हैं यहाँ पे जो आपको पता भी नहीं कौन करता है, संगत को नहीं पता है। अंदर बैठे हैं जो एडिटिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु सेवा, हर सेवादार उस गुरु की निगाह में है जो निष्काम और विनम्रता के भाव से सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस एक पॉइंट आखिर में फिर से, रोज का नियम बनाइए गुरु की हजूरी में बैठने का। गुरु की हजूरी गुरुद्वारा नहीं है तो घर में जो आपका जगह है, जहाँ मंदिर है, जहाँ पे अपने छोटी जगह बना के रखिए, गुरुद्वारा बना के रखे, वहां बैठ कर जाइए। वो भी नहीं है, घर में एक छोटा सा कोना बना लीजिए जहाँ बैठ के समाधि लगानी है, अमृत वेले, वहां बैठ जाइए और सुरती से गुरु की हजूरी में पहुंच जाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की हजूरी में बैठकर कुछ समय बिताकर फिर अपने काम पे जाइए, सारे कार्य अपने आप रास होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम बैठेंगे तो हमें क्या देगा? आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम बैठे सतगुर पास, 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 बैठे सतगुर पास। सच्चे यार से बैठे सतगुर पास, सच्चे यार से बैठे सतगुर पास, सच्चे यार से
सतगुर पास, बैठे 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 सतगुर पास, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भूल मत जाना सारे, आज ब्लड डोनेशन कैंप है। सबसे विनती है कि अपना खून दान रक्तदान जरूर दीजिए, किसी की जान बच जाती है, हमारा कुछ भी नहीं जाता, भला ही होता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, वहाँ पे सामने ही है गुल मैदान के, और फिर शाम तक चलेगा। जरूर समय निकाल के आएगा। धन गुरु नानक। और मंगलवार से यानी कि 28 से प्रभात फेरी की भी शुरुआत हो रही है। 28 तारीख से सब संगत को रूट्स वगैरह जितनी भी है जो फाइनल हुई है आपको ग्रुप्स में आ जाएंगी। उस हिसाब से अपने घर के बाहर गुरु साहब जी आ रहे हैं 5 प्यारे की अगुवाई में, तो उनके सत्कार के लिए फूलों की वर्खा, गुरु साहब जी के लिए चादर बिछाना, जितना ज़्यादा हो सके सत्कार करना है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आपके घर पे आ रहे हैं, घर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने घर के बाहर लाइट्स लगा के सजाइए, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, जो हो सके उतना बांटिए, कुछ प्रसाद कीजिए, संगत की आशीष लीजिए, गुरु की खुशियाँ लीजिए। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये छोटी सी कविता पढ़ लेते हैं, अरदास ही है गुरु के चरणों में। संडे का दिन है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। हरिदास दातिया चरना विच तेरे, फिर डफी बजाना। हरिदास दातिया चरना विच तेरे, हरिदास दातिया चरना विच तेरे, अमृत वेले गुण गाइए तेरे,
हर लो मेरे मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे अरदास दातिया चरना विच तेरे अरदास दातिया चरना विच तेरे मन जुड़ जावे 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 चरना विच तेरे अरदास दातिया चरना विच तेरे अरदास दातिया चरना विच तेरे अमृत वेले दर आइए तेरे हर आइए तेरे अरदास दातिया चरना विच तेरे अरदास दातिया चरना विच तेरे सिक्खी दीदा पाओ चोली मेरे दीदा चोली मेरे कीर्तन दीदा पाओ चोली मेरे दीदा चोली मेरे चरना विच तेरे मेरा मन जुड़ जावे विच तेरे मेरा मन जुड़ जावे नाम च तेरे मेरा मन जुड़ जावे विच तेरे मेरा मन जुड़ जावे नाम दीदा आओ चोली मेरे दीदा चोली मेरे अरदास दातिया चरना विच तेरे 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 चरना विच तेरे चरना विच तेरे चरना विच तेरे हरिदास दातिया चरना विच तेरे हरिदास हरिदास दातिया चरना विच तेरे
बिच तेरे। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावो, आप हाथ दे मोए बचाओ। सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, और भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याऊं। जो पर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए, सुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए। मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा। यस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोय राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता। हो पुरी ततर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए सब जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा। सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी। सगल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जान। जब उद कर्क करा कर तारा। प्रजा तर्त तब दे अपारा। जब वह कर्क करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार। आप आपने मोदे उदार। तुम सब ही ते रहत निरालम। भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा। को पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमान। महामूढ़ कछ भेद न जाने। महान देव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती। तो पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा। कुछ सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयोरा कई कोपा। अंडज जेरज से तज कीनी। कुछ खान बहो रच देने। कहूँ कुल राजा हव बैठा। समट प्यो संकर बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप से अम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो। सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता। सगल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर। के दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है। आके काल निकटने है। रक्षा होई ताए सब काला। दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला। कृपा दृष्ट जाय निहारो। आके तापत नगमो हरो। और एक सिद्ध कर्म सब होई। दुष्ट छा सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा। काल पास देताए उमारा। जिन नर नाम तिहारो कहा। दुष्ट लोग ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी। आप हाथ दे ले उबारी। सर्व डोर मोह सहाई। दुष्ट लोग ते ले बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी। आप हाथ दे ले उबारी। सर्व डोर मोह सहाय। दुष्ट दुख ते ले
राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होआ सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना स्वामी सुख सारे साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कला जे कर तारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया अनंत सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रया भरपूरे बिनवंद नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद धुरे सलो पवन गुरु पानी पिता चंगियाइयां बुरियाइयां वाजे धर्म हजूर कर्मी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया 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 गए मशक्कत काल नानक ते मुखे छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा